आज के टॉपिक में हम इंटरनेट और इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डिस्कस करेंगे। तो पहले इंटरनेट को डिफाइन करते हैं कि इंटरनेट क्या होता है। इंटरनेट Internet is a huge network of computers which link many different types of computers all over the world. It is a network of networks which share a common mechanism for addressing computers and a common set of communication protocol for communication between two computers on the network. डेफिनेशन बेसिकली इसकी वही है जो स्टार्ट में आ गई है, वो क्या है जी? इट इज़ अ ह्यूज नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स। मतलब हमने कंप्यूटर नेटवर्क्स पढ़े हैं। तो वो जो कंप्यूटर नेटवर्क्स में क्या होता है कि डिफरेंट कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होते हैं। लेकिन जब डिफरेंट नेटवर्क्स आपस में कनेक्ट होते हैं तो इंटरनेट बनता है। ये जो वैन हमने पढ़ा, वाइड एरिया नेटवर्क, वो क्या था? वो बेसिकली इंटरनेट ही था जिसमें छोटे छोटे नेटवर्क्स मिलकर एक बड़ा नेटवर्क बनाते हैं। और उसमें क्या है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स जो हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो कनेक्ट होते हैं। और इसे नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स भी कहा जाता है। बेसिकली इसका जो मैकेनिज्म, जो मतलब इसका इसका पर्पस है, वो ये है इंफॉर्मेशन शेयर करना। और वो इंफॉर्मेशन कैसे शेयर होती है? एक एड्रेसिंग मैकेनिज्म है जिसकी मदद से शेयर होती है। एड्रेसिंग मैकेनिज्म जो कि हमने आईपी एड्रेस वगैरह देखे होते हैं। तो आईपी एड्रेस के ज़रिए जो है हर कंप्यूटर को एक अलग से नंबर मिल जाता है उसका। जैसे सिम का, मोबाइल का नंबर होता है, ऐसे ही कंप्यूटर को नेटवर्क का एक एड्रेस मिल जाता है। और उसके थ्रू जो है वो फिर सारी कम्युनिकेशन होती है। अभी हम एक वीडियो देखते हैं जिसमें हम देखेंगे कि इंटरनेट क्या होता है। What is the internet? The internet is like a popular thing. Some satellites up there. I picture in my head with like waves of internet going to the phone. Somebody told me a cloud once. The internet is a lot like plumbing, it's always moving. Most people don't have any idea where the internet came from, and doesn't matter. They don't need to. It's sort of like asking who invented the ballpoint pen or the flush toilet or, the zipper. These are all things we just use every day, and we don't even think about the fact that one day somebody invented them. So the internet is just like that. Many, many years ago, in the early 1970s, my partner Bob Kahn and I began working on the design of what we now call the internet. It was a result of another experiment called the ARPANET, which stood for Advanced Research Projects Agency Network. It was a Defense Department research project. Paul Barron was trying to figure out how to build a communication system that might actually survive a nuclear attack. So he had this idea of breaking messages up into blocks and sending them as fast as possible in every possible direction through the mesh network. So we built what eventually became a nationwide experimental packet network, and it worked. Is anybody in charge of the internet? The government controls it. Elves, obviously elves. The people who control the Wi-Fi, because then no Wi-Fi, no internet. T-Mobile, Xfinity. Bill Gates. Bill Gates. Bill Gates. Right? The honest answer is, well, nobody, and maybe another answer is everybody. The real answer is that the internet is made up of an incredibly large number of independently operated networks. What's interesting about the system is that it's fully distributed. There's no central control that's deciding how packets are routed or where pieces of network are built or even who interconnects with whom. These are all business decisions that are made independently by the operators. They are all motivated to assure that there is end-to-end connectivity of every part of the network, because the utility of the net is that any device can communicate with any other device, just like you want to be able to make phone calls to any other telephone in the world. There's nothing like this that has ever been built before. The idea that what you know might be useful to somebody else, or vice versa, is a very powerful motivator for sharing information. By the way, that's how science gets done. People share information. So this is an opportunity for people to think up new applications, maybe program them as apps on a mobile phone, maybe become part of the continued growth of the infrastructure of the network to bring it to people that don't have access to it yet, or just make use of it on a day-to-day basis. You can't escape from contact with the internet, so why not get to know it and use it? अच्छा जी, इस वीडियो में बेसिकली जो आपको पर्सन नज़र आ रहे थे, ये वो को फाउंडर हैं इंटरनेट के।
अपने एक फ्रेंड के साथ मिलके इन्होंने इंटरनेट जो है वो ये इन्वेंट किया, इसकी सारी टेक्नोलॉजी। और इसका मकसद क्या था? इंफॉर्मेशन शेयरिंग। एक और चीज़ इन्होंने इसमें ये कही कि इंटरनेट को कौन ऑन कर रहा है? तो कोई भी इंटरनेट को ऑन नहीं कर रहा। और साथ उन्होंने कहा कि ये भी कहा जा सकता है कि हम सब इंटरनेट के मालिक हैं। मतलब अगर आप इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, आपके सिस्टम से इंफॉर्मेशन जो है वो दूसरे सिस्टम को जा रही है, तो इसका मतलब है कि आप पार्ट ऑफ इंटरनेट हैं। अगर आप ना हो, आप अपना सिस्टम बंद कर दें, आपकी इंफॉर्मेशन नहीं जाएगी, वो इंफॉर्मेशन इंटरनेट से वैनिश्ड हो जाएगी, गायब हो जाएगी। इसका मतलब है कि आप पार्ट थे, तो वो वाला चीज़ जो है वो एक्सेसिबल थी। ये हो गया। इसके बाद फिर एंड पे उन्होंने ये बताया कि जो इसका बेसिक पर्पस था वो ये था कि इंफॉर्मेशन शेयरिंग और एक दूसरे के साथ जो है वो कम्युनिकेशन। और फिर उन्होंने एंड पे ये भी कहा है कि ये जो इंटरनेट है, आप इसको इसके बगैर अब आपका गुजारा नहीं, तो बेहतर है कि हमें इंटरनेट यूज़ करना आना चाहिए इन बेटर सेंस। तो ये इंटरनेट की एक बेसिक ब्रीफ हिस्ट्री थी। अब हम देखते हैं कि इंटरनेट वर्क कैसे करता है। इसकी भी एक वीडियो है, तो इसको देखते हैं, फिर मैं आपको इसको भी एक्सप्लेन करूँगा कि ये क्या है। अभी हमने जो वीडियो देखी है, इसमें हमें कुछ बातें बताई गई हैं, जैसा कि सबसे पहले ये कि इंटरनेट जो है वो डाटा कैसे ट्रांसफ़र होता है। तो सबसे पहले तो ये बताया गया कि सैटेलाइट से डाटा जो है वो ट्रांसफ़र हो सकता है, लेकिन हम सैटेलाइट से नहीं करते क्योंकि वो हमें काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ेगा। फिर उसके बाद ये है कि फाइबर ऑप्टिक्स यूज़ करते हैं, और फाइबर ऑप्टिक्स के ज़रिए जो है ये डाटा हमारे घरों तक पहुँचता है और हम इसको यूज़ करते हैं। और ये जो डाटा जैसे आपकी ये वीडियो है, तो ये जो भी डाटा इंटरनेट पे स्टोर होता है डिफरेंट वेबसाइट्स का, वो डाटा सेंटर्स में पड़ा होता है। और डाटा सेंटर्स में एसएसडी हार्ड डिस्क का उन्होंने नाम दिया है। ये स्पेशल एक स्टोरेज डिवाइस होती है, हार्ड डिस्क की टाइप एंड लेटेस्ट, जिसमें सारा डाटा जो है वो स्टोर होता है। इसके बाद आईपी एड्रेस की बात की गई है। आईपी एड्रेस जो है वो हमने वेब टर्मिनोलॉजीज में पढ़ा था। और फिर उसके बाद आईएसपी का बताया गया, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। हम ये भी जानते हैं ये वो कंपनी होती है जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड करती है। उसके बाद डीएनएस एड्रेस के बारे में कि किस तरह से हर वेबसाइट को एक एड्रेस जो है वो उसका एक तो आईपी एड्रेस होता है, एक उसको डीएनएस एड्रेस जो है वो दे दिया जाता है, एक नेम, जैसे facebook.com, youtube.com। और हम वो वेबसाइट का नेम जो है वो एंटर करते हैं और वो वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाती है। फिर ये भी बताया गया कि एक सर्वर पे जो है वो मल्टीपल सिस्टम जो है वो हो जाते हैं, मल्टीपल वेबसाइट्स होस्ट हो जाती हैं। फिर डाटा ट्रांसमिशन जो है वो फाइबर ऑप्टिक्स सैटेलाइट्स दोनों के ज़रिए होती है, लेकिन ज़्यादातर हम फाइबर ऑप्टिक्स यूज़ करते हैं। और फाइबर ऑप्टिक्स जो है वो पहाड़ों से, समंदर के नीचे से, मतलब हर किस्म का जो भी दरमियान में हर्डर आएगी उसमें से ये पास हो जाती है। और फाइबर ऑप्टिक्स में आपको पता होना चाहिए कि जो लाइट, ये जो डाटा ट्रांसफ़र होता है, ये लाइट की फॉर्म में होता है। तो वो जो लाइट की फॉर्म में डाटा ट्रांसफ़र होता है, उसको हमारे जो घरों में राउटर लगा होता है, वो उसको दोबारा से इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करता है और हम अपने सिस्टम पे डाटा जो है वो यूज़ कर लेते हैं। और अगर आप मोबाइल से सेलुलर डाटा यूज़ कर रहे हैं, जैसे ये डिफरेंट मोबाइल नेटवर्क्स होते हैं, मोबलिंक है या जोंक है, तो वो हम जो है उनके मोबाइल टावर से कनेक्ट होते हैं। तो उसमें इसमें ये भी बताया गया है कि वो जो टावर्स होते हैं, उनको भी जो इंटरनेट मिल रहा होता है, वो फाइबर ऑप्टिक्स के ज़रिए मिल रहा होता है। अब हम आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक, और वो है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट। तो इंटरनेट के एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हम आज डिस्कस करेंगे। एडवांटेजेस मोस्टली ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आप फेमिलियर हैं, बस हम इनसे एक दफ़ा जो है वो गो थ्रू हो जाएंगे। सबसे पहले एडवर्टाइजिंग। इंटरनेट जो है वो इस वक्त एडवर्टाइजमेंट का बहुत बड़ा सोर्स है। आप इसे कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट किस्म के एड्स जो हैं वो जिस तरह से टीवी कमर्शियल दिए जाते हैं, इस तरह से इंटरनेट पे, सोशल नेटवर्क्स पे एड्स दी जाती हैं। आपने देखा होगा कि जब आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देखते हैं उसके ऊपर ऐड चलती है। इवन जो आप फेसबुक यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे भी आपको डिफरेंट किस्म की एड्स नज़र आ रही होती हैं। और वो जो आपको एड्स नज़र आ रही होती हैं, वो डिफरेंट कंपनीज जो हैं वो फेसबुक, इंस्टा या यूट्यूब वगैरह को पे करती हैं। तो फिर आपके जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे आपको एड्स जो हैं वो डिस्प्ले हो रही होती हैं। और इसमें ये भी आपने देखा होगा, कई दफ़ा ऐसे होता है कि आपने कोई पेज लाइक नहीं भी किया हुआ, लेकिन वो आपको शो हो रहा होता है। वो इसलिए कि आपने उससे रिलेटेड कोई एक्टिविटी की होती है। आपकी सारी एक्टिविटी ट्रैक की जाती है और उसके बाद आपको
उससे रिलेटेड जो है वो ये एड्स आपके स्क्रीन पे शो करवाई जाती हैं। और ये जो आपको एड्स के फॉर्म में पेजेस नज़र आते हैं, इनके ऊपर स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ होता है, जिसका मतलब ये है कि ये ऐड है, ये पेज आपने लाइक नहीं किया हुआ। इंफॉर्मेशन, इंटरनेट जो है वो इंफॉर्मेशन का बहुत बड़ा सोर्स है। किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो आपको इंटरनेट से अवेलेबल होगी, चाहे आपने कुछ लर्निंग का काम करना है या किसी और तरह से कोई आपका आपका काम है और आपको उसके किसी पर्टिकुलर टॉपिक के अबाउट आपको इंफॉर्मेशन चाहिए। लाइक आपको किसी लाइक वेदर फोरकास्ट चाहिए, आपको इस वक्त इंफॉर्मेशन चाहिए कि किसी दुनिया के कंट्री में या किसी सिटी में इस वक्त क्या वेदर कंडीशंस है या क्या न्यूज़ है। हर किस्म की इंफॉर्मेशन जो है वो आपको इंटरनेट से मिलेगी। इसके अलावा सर्च इंजन्स, इस पे भी हम बात कर चुके हैं। सर्च इंजन्स क्या होते हैं? वो एप्लीकेशन, ये वेबसाइट्स होती हैं जहां से आप इंटरनेट पे डिफरेंट किस्म की सर्चेस कर सकते हैं। और सबसे कॉमन जो इसके लिए प्लेटफॉर्म यूज़ होता है वो google.com है। इसके अलावा bing.com भी यूज़ होता है, ask.com भी है और यूट्यूब ये yahoo.com भी है। तो डिफरेंट सर्च इंजन्स हैं, इनसे इन पे जब आप सर्च करते हैं तो आपको अपनी जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होती है वो आपके डेस्कटॉप स्क्रीन पे आ जाती है। इसके बाद ईमेल्स, इंटरनेट पे जब आपने कोई मैसेजेस, लेटर्स वगैरह सेंड रिसीव करने होते हैं तो आप ईमेल यूज़ करते हैं। न्यूज़, इंटरनेट की हेल्प से जो है वो आप न्यूज़ जो है वो उससे जो है वो अवेयर रह सकते हैं। किसी भी किस्म की, किसी भी कंट्री की जो न्यूज़ है वो हर वक्त आपके स्क्रीन पे हो सकती है जो आप चाह रहे होंगे। फिर है जी बुकिंग एयर टिकट्स, ये एयरलाइन सिस्टम जो है ये सारा अब ऑनलाइन हो गया है। आपने कोई टिकट वगैरह बुक करवानी है तो आपको उनके ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप जो इंटरनेट से उनकी वेबसाइट ओपन करें, वहाँ से वहाँ पे अपनी डेस्टिनेशन और डेट एंड टाइम वगैरह सारा अपनी डिटेल बताएं, वो आपको जो फ़्लाइट अवेलेबल होगी वो बता देंगे। आप अपनी मर्ज़ी की फ़्लाइट जो है वो, और वहाँ से इवन अपनी मर्ज़ी की सीट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सारी बुकिंग, पेमेंट वगैरह जो है वो ऑनलाइन होती है। जॉब सर्च, इंटरनेट पे जो है वो आप जॉब सर्चिंग भी कर सकते हैं। बहुत सी ऐसे कंपनीज हैं जो अपनी वेबसाइट्स पे डिफरेंट जॉब्स पोस्ट करती हैं इस तरह से। इसके अलावा बहुत सी स्पेसिफिक वेबसाइट्स हैं जो कि जॉब सर्चिंग के लिए यूज़ होती हैं। जैसा कि पाकिस्तान में जो सबसे पॉपुलर है वो है rosie.pk, जहाँ पे जो है वो आप अपनी सीवी वगैरह जो है वो अपडेट कर देते हैं और जो एम्प्लॉयर होता है, कंपनी जिन्होंने हायरिंग करनी होती है, वो वहाँ पे अपनी जॉब्स वगैरह पोस्ट करते हैं। तो नेक्स्ट है एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट का बहुत बड़ा सोर्स है इंटरनेट। किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन या ये एंटरटेनमेंट आप चाहते हैं तो इंटरनेट आपको फैसिलिटेट करेगा। आपने गेम खेलनी है, मूवीज़ देखनी है, म्यूज़िक सुनना है, मैचेस देखने हैं, ऑनलाइन कोई वीडियो देखनी है, हर फैसिलिटी जो है वो आपको अवेलेबल होगी। रिसर्च, इंटरनेट जो है उस पे आप किसी भी किस्म का रिसर्च वर्क करना चाहें तो आपको हेल्प मिल सकती है। एक होती है सर्च और एक होती है रिसर्च। सर्च तो ये है कि आपको किसी किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए किसी टॉपिक के अबाउट, किसी प्रोडक्ट के अबाउट, किसी कंट्री के अबाउट। रिसर्च ये होती है कि आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कोई थीसिस कर रहे हैं और आपको उस चीज़ के अबाउट एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए, तो इंटरनेट पे इस तरह का लिटरेचर पड़ा हुआ है जो आपको आपकी रिसर्च में जो भी आपका टॉपिक है हेल्प आउट करेगा। इवन गूगल ने इसके लिए एक स्पेशल सर्च इंजन बनाया है जो कि गूगल स्कॉलर के नाम से है। वहाँ पे आप जाके जब सर्च करते हैं तो आपको जो भी उस टॉपिक से रिलेटेड लिटरेचर रिव्यू, जो भी लिटरेचर अवेलेबल होता है, बुक्स या जर्नल्स वगैरह जो कि टेक्नोलॉजी के मैगजीन्स होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेंगी। एजुकेशन, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट यू कैन अप्लाई फॉर एडमिशन इन यूनिवर्सिटीज़ ऑफ वर्ल्ड एंड कैन आल्सो स्टडी वर्चुअली। अब जैसे अभी हम स्टडी कर रहे हैं तो ये वर्चुअल स्टडी है, तो ये आप इंटरनेट की मदद से पॉसिबल है। इसके अलावा आपने कहीं पे कोई अप्लाई करना है, कोई जैसे बहुत से लोग बाहर फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं, तो वो पहले जो है वो यहाँ से जो है अपनी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो वाया इंटरनेट जो है ईमेल के थ्रू फॉरवर्ड करते हैं। एडमिशन वगैरह जो है वो उनका ऑनलाइन ही हो जाता है। इसके अलावा जो है वो इंटरनेट जो है इंसाइक्लोपीडिया है। इंसाइक्लोपीडिया क्या है जी? ओशन ऑफ इंफॉर्मेशन। किसी कोई भी दुनिया में और ऐसी चीज़, ऐसा सॉफ्टवेयर या कोई टूल नहीं है जहाँ पे आपको हर किस्म की जो इंफॉर्मेशन है वो हर वक्त और हर तरह से अवेलेबल हो।
इंटरनेट पे आपके पास ये फैसिलिटी अवेलेबल है। आपको कोई इन्फॉर्मेशन किसी भी टॉपिक के बारे में और फिर उस टॉपिक के बारे में भी फिर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलेगी। आप गूगल पे सर्च करें किसी एक टॉपिक के अबाउट, वो आपको फॉर एग्जांपल आप जस्ट सर्च करते हैं कंप्यूटर, तो वो आपको कोई 20-30 करोड़ रिजल्ट्स देगा इसके अबाउट। मतलब इतनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पड़ी हुई है। फिर है जी ऑनलाइन ट्रेनिंग। इंटरनेट के जरिए ऑनलाइन ट्रेनिंग आप दे सकते हैं। ऑनलाइन ट्रेनिंग मल्टीपल वेज में हो सकती है। फॉर एग्जांपल कुछ लोग ऑनलाइन कुकिंग क्लासेस चला रहे हैं, ठीक है। जैसे हम भी ऑनलाइन जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल इसकी जो है वो क्लासेस ले रहे हैं। तो वो ट्रेनिंग है, मतलब आपको कहीं पे जाना नहीं पड़ेगा। आपको कोई उसके लिए इवन आपको फी भी पे नहीं करना पड़ेगी। आपको ड्राइंग सीखनी है, आप यूट्यूब पे जाएं, आपको ड्राइंग करने के आर्ट वर्क करने के जो है वो सारी गाइडलाइन अवेलेबल होगी। आपने इवन एक लैपटॉप उसको खोल के ठीक करना है, आपके पास सारी डिटेल है। आपका इंटरनेट नहीं चल रहा है, उसमें सारी इंफॉर्मेशन है। आपके मोबाइल का डाटा लॉस हो गया है, वो कैसे रिकवर करना है उस पर सारी इंफॉर्मेशन है। मोबाइल कैसे रिपेयर करना है इसकी ट्रेनिंग अवेलेबल है, ठीक। तो हर डिफरेंट वेबसाइट्स जो है इनके ऊपर ऑनलाइन ट्रेनिंग्स क्लासेस पेड भी होती हैं, यूट्यूब पे तो मोस्टली फ्री होती है। तो आप इससे जो है वो जो है इंफॉर्मेशन या जो भी नॉलेज है वो गेट कर सकते हैं, और फ्री ऑफ कास्ट मोस्टली जो ऐसे यूट्यूब पे है तो वो फ्री ऑफ कास्ट है। आपने जस्ट वो वीडियो ओपन करनी है, उसमें आपको प्रोसेस बताया होगा, आप उसको फॉलो करें तो आप जो रिजल्ट्स हैं वहाँ तक पहुँच सकते हैं। ऑनलाइन मेडिकल गाइडेंस। इंटरनेट पे आप बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपको डिफरेंट किस्म की आप कह लें कि जो मेडिकल कंडीशंस होती हैं उनके अबाउट इंफॉर्मेशन मिल जाती है। कि फॉर एग्जांपल अगर आपको एसिडिटी है तो आपने क्या चीज़ यूज़ करनी है, हेडेक है तो क्या चीज़ यूज़ करें, या आपको किसी के आपने फॉर एग्जांपल आप एक एथलीट हैं तो आपको किस किस किस्म के फूड चाहिए। तो इसके अलावा डिफरेंट जो बीमारियां होती हैं उनकी क्या सिम्टम्स हैं, उनकी क्या आप कह लें कि ट्रीटमेंट्स हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये आपको इंटरनेट से मिल जाती है। इवन आप किसी भी मेडिसिन के बारे में अगर आपको नहीं पता कि ये आपके जो है वो ये किस चीज़ की है, समटाइम्स होता है कि आपको नहीं याद रहता, आप जस्ट उसका नाम जो है वो गूगल करें, आपको पता चल जाएगा ये किस चीज़ के लिए। इवन ये भी पता चल जाएगा कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, इसका बेस्ट टाइम क्या है इसको यूज़ करने का। इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल होती है। फिर आ जाए जी बैंकिंग सेक्टर। ऑनलाइन बैंकिंग स्टार्ट हो गई है। ऑनलाइन बैंकिंग का मतलब क्या है कि सारा डाटा कंप्यूटराइज्ड हो गया है और सारे कंप्यूटर एक नेटवर्क के थ्रू आपस में कनेक्टेड है। कोई भी किसी किस्म की आपने डाटा शेयरिंग करनी है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग करनी है, इंटरनेट के थ्रू होगी। पहले ये होता था कि आपने एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने हैं तो आपको 3 से 7 दिन तक का जो वो टाइम दिया जाता था। वो सारा जो है वो चेक बुक से और कॉपीज़ पे, रजिस्टर्स पे नोट होता था। लेकिन अब ऐसे नहीं, अब आपने यहाँ से डाटा वो अपना अपडेट करना है, मतलब आपने पैसे जमा करवाए हैं किसी अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाने के लिए, वो विदिन सेकंड्स जो है वो दूसरे सिस्टम पे उसकी इन्फॉर्मेशन पहुँच जाएगी और वहाँ से जो है वो आप इसको रिसीव जो दूसरा बंदा वो रिसीव कर सकता है। ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ऑनलाइन जो बिजनेस चल रहा है, ऑनलाइन ये डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, दराज.pk या और alibaba.com, इस तरह की बहुत सी वेबसाइट्स हैं जो कि ऑनलाइन आपको शॉपिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। इन ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स मतलब कॉमर्स होता है तिजारत, बिजनेस। जितना बिजनेस इंटरनेट के थ्रू हो रहा है वो ई कॉमर्स कहलाता है। अब तो बल्कि मोबाइल पे भी हो रहा है। आपको पता है डिफरेंट ऐप्स आ गई हैं, ये जो ऑनलाइन शॉपिंग्स के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, तो वहाँ उसको एम कॉमर्स कहते हैं, मोबाइल कॉमर्स। फिर है ऑनलाइन रिजल्ट्स। यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस के जो रिजल्ट्स हैं वो ऑनलाइन आते हैं। बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे आपके रिजल्ट्स जो हैं वो ऑनलाइन आते हैं, और पहले होता था गजट आती है, अब जस्ट ऑनलाइन उस पे वेबसाइट पे अपलोड हो जाता है। आप अपना रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर जो या जो भी आपका डाटा है वो प्रोवाइड करें, आपको आपका रिजल्ट जो है वो पता चल जाएगा। फिर है चैटिंग। किसी भी किस्म की किसी से आपने बातचीत करनी है, कोई मैसेज वगैरह सेंड करना है या जस्ट वैसे चैट करनी है, तो इंटरनेट आपके पास अवेलेबल है। आप उस को यूज़ करते हुए मैसेज सेंड और रिसीव
कर सकते हैं। फाइनल जो एडवांटेज अभी हम आज डिस्कस करेंगे वो है कम्युनिकेशन। इंटरनेट को यूज़ करते हुए आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। आपका कम्युनिकेशन जो वे है वो कोई भी हो सकता है। आप मैसेजेस सेंड रिसीव कर सकते हैं, मतलब कि चैटिंग जिसे कहते हैं। आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, आप ऑडियो कॉल, वॉइस कॉल कर सकते हैं, इवन कॉन्फ्रेंस कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा ईमेल यूज़ कर सकते हैं। मल्टीपल वेज के ज़रिए जो है वो आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं किसी दूसरे पर्सन के साथ। अब आ जाइए डिसएडवांटेजेस। इंटरनेट के डिसएडवांटेजेस क्या है? सबसे पहले यूज़ ऑफ सम अनफेयर मीन रिसोर्सेज। अनफेयर मीन रिसोर्सेज का मतलब क्या है कि जो अनफेयर तरीकाकार है उसको अडॉप्ट करना। मसलन सम पीपल यूज सम अनफेयर मीन रिसोर्सेज टू परचेज गुड्स ऑन इंटरनेट एंड जनरेट फेक वीजा कार्ड नंबर्स दैट रिजल्ट्स इनटू बिग लॉस फॉर कंपनीज। मतलब अब जैसे आप ऑनलाइन परचेजिंग कर रहे हैं तो इसमें बहुत से अगर वो जो कंपनीज है वो भी बहुत फ्रॉड करती हैं। आपने मंगवाया कुछ होता है, आ कुछ जाता है, तो यूज़र के एंड से भी, मतलब जो कस्टमर है उसके एंड से भी बड़े फ्रॉड्स होते हैं। मसलन कि गलत ऑर्डर कर देना, या ये जो कुछ लोग होते हमारे यहाँ तो इधर ज़्यादा चलता है कैश ऑन डिलीवरी। कुछ लोग होते हैं वो ऑनलाइन जो है वो इसकी पेमेंट कर देते हैं, तो वो जो अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड नंबर जो भी देते हैं, वीज़ा कार्ड उसे कहते हैं, उसका नंबर ही गलत दे देते हैं। तो वो सम टाइम ऐसे होता है वो गलत नंबर, या तो वो उससे ट्रांजैक्शन नहीं होती, या वो नंबर किसी और का होता है और उसकी ट्रांजैक्शन हो जाती है। तो इस तरह के काम भी लोग करते हैं। फिर hacking of data. Different people on internet try to hack data information of other people. इंटरनेट पे बहुत से लोग जो है वो डाटा हैकिंग जो है वो करते हैं। इवन अभी अगर मैं आपसे कहूँ कि जी इसके बाद एक क्लास होगी, हैकिंग सिखाई जाएगी इसकी फेसबुक की, तो आप अगर इसमें 20% स्टूडेंट्स अगर बैठे हुए हैं इस क्लास में, तो उसमें 120% आए होंगे। जिनका काम नहीं है उसने भी ज्वाइन किया होगा कि किसी तरह से हैकिंग आ जाए। मतलब ये हमें शौक होता है कि हम किसी का फेसबुक, व्हाट्सएप, इस तरह की चीज़ें जो है वो हैक कर सके। तो हैकिंग जो है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट काम है, इतना ईजी नहीं होता। आपको यूट्यूब पे या दूसरे वेबसाइट्स पे अक्सर ऐसी वीडियोस मिलती हैं कि जी ये 10 मिनट की वीडियो में जी आपको बता देते हैं कि फेसबुक कैसे हैक करेंगे, या यूट्यूब, या दूसरा ये इंस्टा वगैरह कैसे हैक होगा। इतना इजीली हैक नहीं हो सकता। वेबसाइट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी होती है। लेकिन जो लोग हैक करते हैं उसके लिए फिर ये है कि उन्हें बहुत ज़्यादा जो है वो नॉलेज रिक्वायर होता है, और वो नॉलेज पहले गेट करते हैं और उसके बाद फिर वो जो है इस काम की तरफ आते हैं। लेकिन ये है कि आप ये नहीं कह सकते कि हैकिंग नहीं होती, हैकिंग होती है। और लोगों की इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन, इवन अकाउंट्स, ये जो बैंक अकाउंट, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें जो है वो मिसयूज़ होती हैं। साइबर क्राइम जितना इंटरनेट का यूज़ बढ़ता जा रहा है और साइबर क्राइम भी बढ़ता जा रहा है। इंटरनेट को यूज़ करते हुए डिफरेंट किस्म के क्राइम्स हो रहे हैं। मसलन हैकिंग की जा रही है क्रेडिट कार्ड नंबर्स की, डाटा की। इसके अलावा हरासमेंट हो रही है। इसके अलावा फेक आईडीज बना के जो है वो ब्लैकमेलिंग हो रही है। मल्टीपल वे से जो है वो लोगों को तंग किया जा रहा है, और ये सारा कुछ जो है वो साइबर क्राइम्स में आता है। फिर है जी वेस्टिंग ऑफ टाइम। इंटरनेट जो है वो एक टाइम वेस्ट का भी बहुत बड़ा एक वजह बन रही है। मतलब कि आप एक दफ़ा इंटरनेट जो है वो ऑन कर लें, चाहे वो यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक दफ़ा जो है वो लॉगिन हो जाते हैं। उसके बाद आप जस्ट स्क्रॉल करते जाते हैं, और वो एंडलेस टाइम लाइन है, ना वो ख़त्म होती है और ना ही वो आप उसको क्विट करते हैं। मतलब आप जितना स्क्रॉल करते जाएंगे वो न्यू से न्यू पोस्ट आपको दिखाता जाएगा। तो ये है कि ये वेस्टिंग ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा होती है। इसको आप चाहें आप पॉजिटिव पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं कि अगर आप 5 घंटे जो है वो सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें से आधा घंटा, 1 घंटा आप निकाल लें जो आप अपनी ग्रूमिंग के लिए या बेटरमेंट के लिए यूज़ करें। फिर है जी वायरसेस। इंटरनेट सबसे बड़ा सोर्स है जी वायरस का। जो बिग वायरसेस हैं वो इंटरनेट के थ्रू फैलते हैं। अगर आपका सिस्टम इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है और
फिर कोई चांस नहीं उसमें वायरस है अगर आप यूएसबी नहीं लगाते। दो ही चीज़ें हैं, एक वायरस जो फैलता है एक इंटरनेट से, एक यूएसबी से। तो ज़्यादा इंटरनेट से कि हमें पता नहीं होता, हम कोई ईमेल ओपन करते हैं उसके साथ वायरस अटैच है, हम इंटरनेट से कोई फाइल डाउनलोड करते हैं उसके साथ कोई वायरस अटैच हो सकता है। तो मल्टीपल इसके जो है वो सोर्सेज हो सकते हैं, लेकिन ये है कि इंटरनेट जो है वो बिग सोर्स ऑफ वायरसेस है। सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं जब से इंटरनेट आया है। सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स किस तरह से बढ़ गई हैं कि जितने भी ये सिक्योरिटी सिस्टम्स होते हैं, या आप ये कह लें आपके जैसे ईमेल आईडीज़ हैं, आपके अकाउंट्स होते हैं, ये इसके बैंक अकाउंट्स हैं, आपने डिफरेंट ऐप्स अपने मोबाइल में की होती हैं, तो वैसे तो ये हर चीज़ पासवर्ड प्रोटेक्टेड होती है, आपने पिन कोड रखे होते हैं, आपने ये पैटर्न्स लगाए होते हैं, मोबाइल पे कोई पासवर्ड लगाया होता है, लेकिन फिर भी इसमें ये इशू होता है कि आपकी सिक्योरिटी जो है वो ब्रीच हो सकती है, क्योंकि जो हैकर्स होते हैं वो आपका ये डाटा हैक कर सकते हैं, आपके पासवर्ड, पिन कोड्स वगैरह, और फिर उसको मिसयूज़ किया जा सकता है। इंक्रीज ऑफ एक्सपेंस, एक्सपेंस भी बढ़ गए। जब आप इंटरनेट यूज़ करते हैं तो फिर आप डेफिनेटली आपको पैकेजेस करवाने पड़ेंगे, या आपको कोई इंटरनेट का कनेक्शन लेना पड़ेगा, तो वो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पे करना पड़ेंगे। फिर है इमोरलिटी, इंटरनेट पे कुछ इमोरल एक्टिविटीज़ भी होती हैं। बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो टेक्स्ट, पिक्चर्स, मूवीज़ ऐसी हैं कि जो इमोरल हैं, और मतलब कि सर्टन आप कह लें कि जो एक एज ग्रुप है उसके लिए ठीक नहीं। अब इसमें और भी इस तरह से आप देखें कि जैसे यूट्यूब है, तो यूट्यूब पे आपको ऐसी वीडियोस भी मिलेंगी जिस पे कोई एक्सीडेंट की वीडियो है। अब वो एक्सीडेंट की वीडियो जो है वो थोड़ी सी आप कह लें कि खौफनाक भी हो सकती है, तो अब बच्चे भी उसको यूज़ करते हैं। तो मतलब ये कि ये इसमें ऐसा डाटा भी है कि जिस डाटा पे आप कह सकते हैं कि जो बहुत ज़्यादा जो है वो माइंड को, ब्रेन को नेगेटिव साइड पे लेके जा सकता है। अब ऐसी वीडियोज़ हैं जहाँ पे लोग जो है वो एक्शन वीडियोज़ रिकॉर्ड करते हैं, वहाँ से जो न्यू जनरेशन है उसके अंदर जो है वो वायलेंस का जो है वो एलिमेंट आ रहा है। फिर है फ़िल्ट्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन फ़िल्टर करना, आपने एक चीज़ सर्च की है, अभी आप सर्च करें लाइक रैम, या ये इवन डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट ही सर्च करें ये उस पे गूगल पे, तो आप देखेंगे आपको कोई 20, 40, 50 लाख जो है वो इसका रिजल्ट्स आ जाएंगे। अब 50 लाख में से आपसे रिलेटेड कौन सी इंफॉर्मेशन है, इसको फिल्टर करना एक डिफ़िकल्ट टास्क है। और अमूमन क्या होता है कि हम 1-2 पहली वेबसाइट ओपन करते हैं, हमें वो चीज़ मिल जाए ठीक है, नहीं तो हम कह देते हैं जी कि ये तो नेट पे था ही नहीं। तो ऐसे नहीं होता, वो किसी दूसरे, चौथे, 5वें पेज पे भी हो सकती है, लेकिन इंफॉर्मेशन को फ़िल्टर करना भी थोड़ा-सा एक मुश्किल काम है। अच्छा, इंफॉर्मेशन को फ़िल्टर करना भी मुश्किल है, और फिर इंफॉर्मेशन की एक्यूरेसी भी जो है वो एक इसमें बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे जो इंफॉर्मेशन मौजूद है, क्या वो एक्यूरेट है कि नहीं है? अब ये भी एक चीज़ देखने वाली है। अब देखें, आपका एक सोशल मीडिया पे आपका एक अकाउंट है, आप कोई पेज बना लेते हैं, वो कोई सियासत से रिलेटेड हो सकता है, वो कोई सोशल वर्क से रिलेटेड हो सकता है, और उसमें आप इंफॉर्मेशन अपलोड करते जाएं किसी एक पर्सनैलिटी के, किसी एक पर्सन के बारे में, किसी एक अदारे के बारे में, किसी एक सिटी के बारे में, किसी मज़हब के बारे में, और एक ख़ास किस्म का अपना जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है वो उस पे लगाते जाएं, लगाते जाएं, लगाते जाएं। अब वो कोई भी देख सकता है। तो इस चीज़ की क्या गारंटी है कि जो आपने कहा है वो ठीक है कि नहीं ठीक? अभी रिसेंटली जो है, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे कैंपेन चली थी कि जब हम सर्च करते थे लास्ट कैलिफ ऑफ इस्लाम, तो वो जो कादियानी है उनकी डिटेल आ रही थी। तो अब वो देखें ना, अगर कोई नॉन मुस्लिम है, हम तो मुस्लिम है, हमें पता है कि ये इन्फॉर्मेशन रॉन्ग है, लेकिन अगर एक नॉन मुस्लिम है और उसको किसी तरह से ये इस्लाम जो है वो किसी तरह से लाइकनेस बढ़ रही है, और इस पे वो सर्च करता है, तो जब वो सर्च करेगा तो वो इन्फॉर्मेशन उसको मिल जाएगी वो कादियानी वाली। तो इसका मतलब है कि हर इन्फॉर्मेशन जो इंटरनेट पे मौजूद है वो एक्यूरेट भी नहीं है। थेफ्ट ऑफ पर्सनल डिटेल, आपकी पर्सनल डिटेल्स जो है वो चोरी हो सकती हैं।
अब देखें आपने अपने जो मोबाइल्स पे अपने जीमेल अकाउंट्स लगाए हुए हैं, वही फेसबुक पे भी लगे हुए हैं, कुछ और डिफरेंट वेबसाइट्स आप इंस्टा, ये ट्विटर भी यूज़ करते हैं, टिकटॉक भी यूज़ करते हैं, वहाँ पे लगे होते हैं। वहाँ पे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, बेशक आपने उसको हाइड किया हुआ है, लॉक किया हुआ है, लेकिन फिर भी जो है वो चोरी हो सकता है। अक्सर ऐसे होता है कि स्पेशली गर्ल्स क्या करती हैं कि टिकटॉक बनाती हैं और उसको जो है वो अपना अकाउंट पब्लिक नहीं किया होता, प्राइवेट रखती हैं। लेकिन अगर आपका वो अकाउंट हैक हो गया तो फिर चाहे पब्लिक है चाहे प्राइवेट है, जिसने हैक कर लिया उसकी एक्सेस में आ जाएगी और फिर वो इस तरह से ये जो वीडियोस हैं या इंफॉर्मेशन है, डाटा जो है वो लीक आउट होता है। तो पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है यहाँ से डिटेल्स जो है वो उसके चोरी होने का भी खदशा है। स्पैमिंग, इससे आपको थोड़ा सा आइडिया होगा। ये जो आप मोबाइल फ़ोन पे आप देखते हैं डिफरेंट मैसेजेस आते हैं कि फ़लाँ ब्रांड पे ये जो है वो एक सेल लगी हुई है या फ़लाँ पैकेज आप करवा लें, मतलब डिफरेंट मैसेजेस आते हैं। एक दिन में कोई 10-12 ऐसे मैसेजेस आ जाते हैं जो जस्ट एडवर्टाइजमेंट होती है। तो वो जो मैसेजेस होते हैं वो बेसिकली इसी तरह के मैसेजेस आपको ईमेल की फॉर्म में आते हैं, अनवांटेड ईमेल। तो ये जो अनवांटेड ईमेल्स होती हैं जो मुसलसल आती रहती हैं, ये स्पैम कहलाती हैं। मतलब कि ये एक बड़ा अभी आप जो ये फेसबुक के लिए, यूट्यूब या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए आपने जो जीमेल आईडी बनाया है, उसके मेलिंग अकाउंट में जाएं, वहां पे जाके चेक करें, इतनी ज़्यादा ईमेल्स आई होंगी जिनका आपको ना पता है ना आपको रिक्वायर थी, लेकिन वो भेजी जा रहे हैं। तो हमें तो ये चीज़ इतनी फील नहीं होती स्पैमिंग, क्योंकि हम ईमेल ही यूज़ नहीं करते। हम ईमेल यूज़ करते हो तो फिर हमें ये थोड़ा सा प्रॉब्लम फील हो कि यार मेरी 4 मेल्स काम की हैं इनबॉक्स में और 200 ईमेल्स मुझे एड्स आए हुए हैं। बहरहाल स्पैमिंग जो है वो एक डिसएडवांटेज है। और फाइनल ये है इंग्लिश लैंग्वेज प्रॉब्लम। इंग्लिश लैंग्वेज प्रॉब्लम भी है हमारे लिए कि हम इंटरनेट यूज़ करते हैं, लेकिन इंग्लिश से हम इतने फेमिलियर नहीं। सम टाइम ऐसे होता है हम कोई चीज़ सर्च करते हैं, वो हमारे काम की होती है, लेकिन चूंकि हमें कुछ लोगों को वो अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी मुश्किल होती है तो वो फिर उसको प्रॉपरली कर नहीं पाते। इसी तरह से इंटरनेट पे कुछ काम की इंफॉर्मेशन भी होती है। जैसे आप यूट्यूब से कोई वीडियो सर्च करें तो कोई ट्यूटोरियल्स हैं, कोई वीडियो एडिटिंग के, कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग के, वेबसाइट बनाने के। अब वो चीज़ें ऐसी हैं कि आपको उसका जो अच्छा ट्यूटोरियल मिल रहा है वो मिल रहा है इंग्लिश में। तो आप जब इंग्लिश में वो वीडियो देखते हैं तो मोस्टली लोगों को वो समझने में मुश्किल आती है। एक आप न्यू चीज़ सीख रहे हैं, वो इंग्लिश में सीख रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि वो बजाय इसके कि वो इस चीज़ जो वो उन्होंने चीज़ काम करना शुरू किया है, उस पे वो काम करें या फ़ोकस करें, वो उससे जो है वो डिसहार्ट होके छोड़ ही देते हैं, क्योंकि उनको इंग्लिश ही समझ नहीं आ रही, तो फिर उसके अंदर जो टेक्निकलिटीज़ हैं, वो कैसे समझ आएँगी। तो ये डिसएडवांटेजेस थे जी, और एडवांटेजेस थे जो आज हमने देखे इंटरनेट के। इसके अलावा भी बहुत से इंटरनेट के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस आपको गूगल से मिल सकते हैं, आपको वैसे भी पता हो सकते हैं, आप वो चाहें तो वो आप लिख सकते हैं। तो टॉपिक जो है वो आज का हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं।